Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will discuss about the PN junction with an applied voltage. We will see what is meant by reverse bias, what is meant by forward bias, and also try to understand the shape of the volt ampere characteristics of a PN junction diode. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISE, and different state boards. The topic covered here will also be found useful for various competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. सबसे पहले हम ये जान लें कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओम्स लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, या इसी को लिखते हैं कभी कभी हम I proportional to V. So the graph between voltage and current will be a straight line. लेकिन this is not true in the case of semiconductors. ठीक है, सेमीकंडक्टर में ये बात नहीं है, ये इसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, so when a potential is applied across a PN junction diode, it is found that the volt ampere characteristic is non-linear. It is not a straight line. If the p-type material is made positive with respect to the n-type, the junction is said to be forward biased because this is the direction in which the resistance of the device is low and the current flows more readily. देखिए फिगर 1 में हम दिखा रहे हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। ये देखिए ये पीएन जंक्शन डायोड है। पी टाइप को हमने जोड़ दिया है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को जोड़ दिया है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। जंक्शन डायोड का ये हमारा सिंबल है, तो इसी फिगर को यहाँ ड्रॉ किया गया है विथ द सिंबल ऑफ ए जंक्शन डायोड। ठीक है, यदि हम इस सेल की पोलैरिटी बदल दें, मतलब पी साइड को जोड़ दें नेगेटिव टर्मिनल से सेल के और एन साइड को जोड़ दें हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इस केस में हम बोलते हैं कि जंक्शन जो है सो रिवर्स बायस है। ऐसी स्थिति में इसका रेसिस्टेंस जो है सो एक्सट्रीमली हाई होता है एंड थ्योरेटिकली इट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो रिवर्स बायस कैसे होता है? रिवर्स बायस होता है ऐसे, देखिए ये हमारा डायोड अगर है तो इसको हमने जोड़ दिया है नेगेटिव से, इसको जोड़ दिया है पॉजिटिव से, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। ठीक है, सो व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, जैसा हमने दिखाया है फिगर 1 में, द होल्स इन द पी टाइप मटेरियल आर रिपेल्ड टू द राइट टुवर्ड्स द जंक्शन by the positive terminal of the voltage source, and the electrons in the n-type material are repelled to the left towards the junction by the negative terminal of the voltage. हमने बताया पहले आपको कि होल्स जो हैं they behave like positively charged particle. So p टाइप में एक्सेस में होल्स हैं, p टाइप को जोड़ दिया गया है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, इसलिए होल्स मूव टू दी राइट टुवर्ड्स दी एन टाइप मटेरियल। उसी तरह से एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, एन टाइप को जोड़ दिया गया है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, सो नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है, सो द इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द लेफ्ट, सो होल्स मूव टू द राइट एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द लेफ्ट। सो ऑल्दो देयर एग्जिस्ट्स a potential barrier at the junction that prevents the electrons and holes from moving across and combining. हमने देखा है कि जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर होता है डेवलप जब जंक्शन बनता है तब। ठीक है, so this potential barrier prevents the electrons and holes from moving across the junction and combining. Under the influence of the externally applied field, the holes move to the right and electrons to the left. In the vicinity of the p-n junction, therefore, electrons and holes meet and combine and cease to exist as mobile charge carrier.
तो हमने देखा है पहले कि जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर है, जिसके कारण बिना अप्लाइड फील्ड के चार्ज कैरियर्स जंक्शन के क्रॉस मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब फील्ड लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बाहर से हमने, तो द चार्ज कैरियर्स move across the junction by overcoming the potential barrier, provided the applied potential exceeds the height of the potential barrier, which is roughly 0.2 volt for a germanium diode and 0.7 volt for a silicon diode. तो जब इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलेंगे, होल्स जा रहे हैं लेफ्ट से राइट और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं राइट से लेफ्ट, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और होल्स में पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे दोनों मिलेंगे, दे सीज टू एग्जिस्ट एज मोबाइल चार्ज कैरियर, दोनों मिलकर खत्म हो गए। सो फॉर एवरी इलेक्ट्रॉन होल पेयर दैट इज लॉस्ट बाय रिकॉम्बिनेशन, सम एनर्जी इज लिबरेटेड which is sufficient to break a covalent bond near the positive battery terminal. आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि 2 पार्ट हाइड्रोजन का 1 पार्ट ऑक्सीजन का मिला देंगे तो क्या बनता है, H2O। ठीक है, इसका मास और इसका मास जोड़िएगा तो होना चाहिए क्या, इसके मास के बराबर, M1 M2 दिस इज M। लेकिन हम क्या देखते हैं कि M इज लेस देन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए, जब इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं तो ये जो मास कम हो गया, फाइनल प्रोडक्ट का मास, जो डिफरेंस हुआ मास में, दैट अपीयर्स एज मास डिफेक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। वो रिलेशन क्या कहता है हमारा, वो रिलेशन है दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, जो मास डिसअपियर हो गया, इसको गुना करेंगे स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, we then get the energy that binds the two molecules together. यदि डेल्टा एम मास डिफेक्ट है तो एनर्जी इक्विवेलेंट टू दिस मास इज गिवन बाय E इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन होल मिलते हैं तो दे सीज टू एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल चार्जेस, सो एनर्जी इज लिबरेटेड and this energy is sufficient to break another covalent bond near the positive battery terminal. So whenever a covalent bond breaks down, an electron is liberated. इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, कहाँ पर लिबरेट होगा, वो लिबरेट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास। तो देखिए, ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये हमारा नेगेटिव एंड है, ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड टूट गया तो एक होल बना और एक इलेक्ट्रॉन बना। इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बैटरी के नेगेटिव एंड से, दिस विल एंटर इनटू द एन टाइप टू रिप्लेनिश द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हो रही है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द लेफ्ट। इसके साथ ही जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से होल बना था, वो बिकॉज ऑफ रिपल्शन फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज सोर्स, दे मूव टू द राइट। तो होल्स मूव कर रहे हैं राइट की तरफ और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ। नियर द जंक्शन दे कैन रिकम्बाइन and cease to exist as mobile charge carriers. For each electron hole recombination, a covalent bond breaks down as described earlier and the process is repeated. तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की सप्लाई भी हो रही है रेगुलर और होल्स की सप्लाई भी रेगुलर हो रही है। So as a consequence, a large current flows through the junction. A minimum voltage of 0.2 volt is required to overcome the potential barrier at the junction and allow any current to flow.
The current then increases rapidly with increasing battery voltage as shown in the first quadrant of figure 2. देखिए ये हमारा फिगर 2 है। इस फिगर में देखिए वोल्टेज बढ़ाने पर भी इस वोल्टेज की इस वैल्यू तक करंट फ्लो होना शुरू नहीं होता है। सो ये क्या है? ये है आपका पोटेंशियल बैरियर का मान है ये। दिस इज योर पोटेंशियल बैरियर जिसको हम लिखते हैं VB से। दिस इज 0.2 वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये बैरियर पोटेंशियल को पार करने के बाद ही जब अप्लाइड पोटेंशियल VB से बड़ा होगा देन ओनली द करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द डायोड। ठीक है। फिगर 2 में एक्स एक्सिस में वोल्टेज इंक्रीजिंग दिखा रहे हैं, इधर करंट दिखा रहे हैं इंक्रीजिंग। ID स्टैंड्स फॉर डायोड करंट। तो जब अप्लाइड पोटेंशियल क्रॉस द डायोड VD है तो उस समय करंट का मान ID है। हम देख रहे हैं दिस लाइन इज ए कर्व, दिस नॉट ए स्ट्रेट लाइन। सो द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ। ओके। अब आइए देखते हैं यदि अप्लाइड वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी को रिवर्स कर दें तो क्या होता है। ये सिचुएशन फिगर 3 में दिखाया गया है। When the polarity of the voltage source is reversed, the holes in the p-type material move away from the junction because of attraction by the negative terminal of the voltage source. Similarly, electrons in the n-type material move away from the junction because of the attraction by the positive terminal of the voltage source. So, since all the charge carriers move away from the junction, current flow should stop completely. This is so because there are no charge carriers crossing the junction in either direction. The circuit is therefore not complete. However, a small current of few microamperes is still found to flow through the junction. ये करंट कहाँ से आया? डोप्ड सेमीकंडक्टर जो हैं उनमें बहुत थोड़ी एनर्जी देकर भी उनके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है। रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी इजीली अवेलेबल है। ओके। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, इन ये माइनॉरिटी में है और ये हमारे लिए माइनॉरिटी कैरियर ही हैं। तो ये छोटा करंट जो फ्लो हो रहा है फ्यू माइक्रो एम्पियर का, दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन बोथ p and n type semiconductors. Electrons liberated in this process in p-type material move towards right. ठीक है, because of repulsion from the negative terminal of the voltage source, while the holes liberated in the n-type material moves towards left. यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन p-type में जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो जा रहे हैं राइट की तरफ टुवर्ड्स द जंक्शन। n-type में जो होल जनरेट हुए वो जा रहे हैं लेफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन। So a small constant current is maintained through the junction by the so-called minority carriers as shown in the third quadrant of figure 2. फिगर 2 को हमने यहाँ पर आपके लिए कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। ठीक है। सो इफ द रिवर्स बायस इज मेड सफिशिएंटली हाई, बहुत ज़्यादा कर देंगे हम इसको अगर, तो ए लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन ब्रेक डाउन एंड ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड गिविंग राइज टू ए लार्ज करंट। ठीक है। तो देखिए शुरू में ये करंट जो है बहुत ही कम है क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम है। सो दिस करंट इज नियरली ए कांस्टेंट। ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। जब वोल्टेज हम बढ़ाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा तो बिकॉज चार्ज कैरियर्स एक्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर हाई होगी तो चार्ज कैरियर्स की एनर्जी हाई होगी, वो कोलाइड करेंगे दूसरे एटम से और उनके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे एंड द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स विल इंक्रीज एब्रप्टली एट ए पर्टिकुलर वोल्टेज। ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस वोल्टेज पर जो है सो करंट का मान शार्प स्टीपली राइज करता है इन रिवर्स डायरेक्शन। जिस रिवर्स वोल्टेज पर करंट का मान शार्पली बढ़ता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है।
देखिए इस वोल्टेज पर करंट शार्पली बढ़ रहा है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं नी ऑफ द कर्व। ओके, पी एन जंक्शन का ब्रेकडाउन कब होता है, ब्रेकडाउन कितने तरीके के होते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज को कैसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, इसकी चर्चा हम किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। अब देखिए ये हमारा पी जंक्शन है और ये जो है ये पोर्शन, दिस इज योर डिप्लीशन लेयर। ठीक है, तो इस पोर्शन में कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए इस पोर्शन का रेजिस्टेंस थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है या थ्योरेटिकली इनफाइनाइट है। दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड। तो बाकी इस पोर्शन में और इस पोर्शन में चार्ज कैरियर हैं, इसलिए जब जब करंट फ्लो करेगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप इस पोर्शन में ही होगा, क्योंकि वी हैव v इक्वल टू आई आर। ठीक है, आर का मान 0 अगर है बल्क मटेरियल में, ये आपका हम बोल रहे हैं बल्क मटेरियल, ये आपका बल्क मटेरियल है, इसमें रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो चार्ज कैरियर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, इसलिए देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द बल्क मटेरियल इज 0। तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उस केस में वो होता है अक्रॉस दी डिप्लीशन लेयर। ओके, हमने देखा है कि पीएन जंक्शन में जंक्शन के पास एक बैरियर लेयर है। जंक्शन के एक तरफ, जिस तरफ हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उस तरफ नेगेटिव आयंस हैं, और जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर है उस तरफ पॉजिटिव आयन है। तो ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। तो पी टाइप में नेगेटिव आयन है और एन साइड में पॉजिटिव आयन है। तो देखिए फॉरवर्ड बायस क्या होता है, पी साइड को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल से, एन साइड को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से। रिवर्स बायस क्या होता है, पी को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल से और एन को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल से। उस दृष्टिकोण से देखा जाए अगर, तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है यहाँ पर, ये जंक्शन को रिवर्स बायस ही कर रहा है, क्योंकि पी साइड में ये नेगेटिव है और एन साइड में ये पॉजिटिव है। ओके, ठीक है, ये अब आइए आगे देखते हैं। Since the barrier potential VB is actually a reverse voltage, it is lowered by an applied forward voltage and increases by an applied reverse voltage. Thus, the effective barrier voltage across the PN junction in presence of an applied voltage V is Vt equal to Vb minus V, where V is negative for applied reverse voltage and positive for the applied forward voltage. So this is all about PN junction with an applied voltage. हमने देखा है what is forward bias, what is reverse bias, what is the shape of the volt ampere characteristic of a PN junction diode. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.